میں جو غار ہے جس کا نام ہے غار سور، وہاں پہ آتے ہیں اپنی زندگی کے 3 دن 3 راتیں قیام کرتے ہیں۔ مدینہ اس سائڈ پہ ہے، مکہ بھی اس سائڈ پہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے وہ جبل سور غار سور پہاڑ کے دامن میں آتے ہیں، تو اس پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں۔ اب جانا تو اس سائڈ پہ تھا، ادھر کیا کریں، اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا یہاں پہ آنا، اس غار کے اندر 3 دن 3 راتیں قیام کرنا، اور یہاں پہ سانپ اور مکری اور کبوتری والا واقعہ پیش ہے۔ اب اس کی نشاندہی کروں گا، سارے لوگ میری طرف دیکھیں گے، میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے۔ پہاڑ پہ چڑھنا ہے، آپ کہہ رہی تھی نا پہاڑ پہ چڑھتے ہیں، کہہ رہی صبح آ رہی ہوں میں، جاگر پہنی ہوں میں، بس پانی کی ارینجمنٹ کر دے اور پہاڑ چڑھا دے مجھے۔ دادے کو پہاڑ پہ چڑھنا ہے۔ جامعہ ام القرآن یونیورسٹی ایسے سمجھے کہ یہ علماء کرام پیدا کرتی ہے۔ یہ میدان عرفات کی نفوت بندی کو شو کر رہے ہیں۔ لوہے والی شالی نظر آئے گی آپ لوگوں کو؟ ڈالی نظر آئی، اندر نیم کے درخت لگے ہوئے ہیں، یہ بھی پاکستان سے منگوائے گئے تھے گورنر ضیاء کے دور میں 80 میں، تو یہاں پہ لگائے گئے تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو ہمارے ملک کو لوٹ میں اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اور جو ہمارے ملک کے دفاع کے لیے اللہ پاک ان کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ایسے دیکھے بوڑھی جگہ رہے، اور آپ لوگ دیکھیں وہاں دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ تو دیکھو رش دیکھے تعداد ہے، پچھلی دفعہ جب ہم لوگ آئے سڑک چھوڑی تو تب رش ہو گئی۔ 10 ذی الحج کو توجہ دینی ہے، 10 ذی الحج کو بڑے شیطان کو 7 پتھر مارے، کتنے؟ 7 پتھر مارے۔ چلے گئے طواف زیارہ کیا، قربانی کی، حلق سر مڈایا، احرام کھولا، اس کے بعد پھر واپس آ گئے مینا کے اندر۔ پھر 11 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو 7 پتھر مارے، پھر وہی پروسیس، پھر واپس آ گئے۔ پھر 12 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو 7 پتھر مارے۔ ٹوٹل پتھر کتنے ہوئے؟ ارے ہیرا کا پہاڑ ہے، اس پہ چڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ لگتا ہے اور واپس آنے میں 40 منٹ لگتا ہے۔ ہیلو ویلکم ٹو آج ہم لوگ زیارتیں پہ جا رہے ہیں، تو بھائی ان انکل کی بس میں بیٹھیں گے، چلو زیارتیں کرنا، آپ سے ملتا ہے پھر دیکھیں وہ اس والی بس میں ہمیں بیٹھنا ہے۔ چلے گا سبھی ہم لوگ بس میں بیٹھے ہیں۔ شبان سارے لوگ مل کے میرے ساتھ سفر کی دعا پڑھ لیں، سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا ربنا لمنقلبون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ دیں گے تو آپ کا لوگ مرتبہ ہے تو دوسری پہلے سارے اللہ پاک ایک ایک قدم کے صدقے نیکی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ کو گزشتہ عمرہ کی مبارکباد ہے، جو آپ لوگوں نے ادا کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ عمرہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے، اور اللہ پاک بار بار اپنے گھر کی حاضر نصیب فرمائے، اور اللہ پاک بار بار روزہ رسول کی حاضر نصیب فرمائے۔ زیارت کا مطلب سیر تفریح نہیں ہوتا، زیارت کا مطلب ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، ان زیارت پہ جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ توجہ رکھنے سے آپ کا فائدہ ہوگا۔ پھر آپ کو چھوٹی گائیڈ نہیں بتایا تھا، آپ خود گپ شپ کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر آپ کا ضرورت ہے تو انشاءاللہ زیارت کے مطابق بتائیں گے جو بھی ہماری زیارت ہے۔ آج کی جو ہماری پہلی زیارت ہے مکہ کی مقدس زیارات میں سے اول زیارت، جس کا نام ہے جبل سور غار سور، جسے غار یار بھی کہا جاتا ہے۔ جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، سور کا مطلب ہے بیل کی فوہان۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف چلے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل سور غار سور کے اندر اپنی زندگی کے 3 دن 3 راتیں قیام کرتے ہیں۔ کتنے دن کتنے راتیں؟ 3 راتیں قیام کرتے ہیں جبل سور غار سور، پہاڑ کے جو غار ہے غار سور۔ اب انشاءاللہ 1 سے 1.5 منٹ میں ہماری گاڑی وہاں پہ پہنچے گی جبل سور پہاڑ کے دامن میں، وہاں پہ رکیں گے، زیارت ہوگی، زیارت کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے میدان عرفات کی طرف۔ میدان عرفات کے اندر ہماری 3 زیارت ہیں گی۔ پہلی زیارت ہوگی میدان عرفات، دوسری زیارت ہوگی مسجد نمرہ، اور تیسری زیارت ہوگی جبل رحمہ، رحمت والا پہاڑ، توبہ والا پہاڑ، جہاں پہ اماں حوا اور بابا آدم کی توبہ قبول ہوئی، دعا قبول ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں جہاں پہ ہمیں جگہ کریں گے۔ لے گائے سبھی اتار رہے ہیں، یہاں بھی دعا وغیرہ۔ ہم لوگ اپنی جگہ پہ ارائیو ہو چکے ہیں، آپ لوگ دیکھیں کبوتر وغیرہ۔ دادی نے پہلی دفعہ کریں گی، دادی ہے نا، دادی زیارت پہلے کریں گی۔ ہاں آپ بھی تو پہلی دفعہ کرتے ہیں، میں دوسری دفعہ کر، وہ بلکہ تیسری دفعہ کرنا۔ دیکھیں کبوتر کتنے سارے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ دعائیں وغیرہ کریں گے، پھر ہم لوگ اپنی نیکسٹ پلیس پہ جائیں گے، اور اس کے بعد جو نیکسٹ پلیس ہوگی وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گی۔ دادی ہے نا وانی میں جو غار ہے جس کا نام ہے غار سور، وہاں پہ آتے ہیں اپنی زندگی کے 3 دن 3 راتیں قیام کرتے ہیں۔
मदीना इस साइड पे है, मक्का भी इस साइड पे है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता है वो जबले सोर गारे सोर पहाड़ के दामन में आते हैं, तो इस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं। अब जाना तो उस साइड पे था, इधर क्या करें, अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म था यहाँ पे आना, इस गार के अंदर 3 दिन 3 रातें क्याम करना, और यहाँ पे सांप और मकड़ी और कबूतरी वाला वाकया पेश है। अब इसकी निशानदेही करूंगा, सारे लोग मेरी तरफ देखेंगे, मेरे हाथ की तरफ देखेंगे। मेरी 2 उंगलियां नजर आ रही है सबको, ये छोटी है और ये बड़ी है। इसी तरह टॉप पे देखें, लास्ट पे देखें, सामने वाला जो पहाड़ नजर आ रहा है आप लोगों को, उसके ऊपर 2 बड़े पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। जबले सोर गारे सोर, जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं और सोर का मतलब है बैल की कुहान। ये जो पहाड़ है ये बैल की कुहान की माने फैला हुआ है। अब इनके सेंटर में खला भी नजर आ रहा है आप लोगों को। इसी तरह मेरी उंगलियों की तरफ देखेंगे तो सामने सबको नजर आएगा। वहाँ पे जो खला है, खला वाली जगह पे उस गार का दरवाजा है जहाँ पे लोग अंदर जाते हैं, अपने घुटनों के बल बैठ के वहाँ पे ज़ियारत करते हैं और नवाफिल अदा करते हैं। ये ज़ियारत है जबले सोर गारे सोर। इस पहाड़ की जो ऊंचाई है 5413 फीट के करीब है। कितनी? 5413 फीट के करीब है। इस पे जाने के लिए हमारे पास आने जाने के लिए 4 घंटे होने चाहिए। सुबह की नमाज हरम में अदा करें, वहाँ से आए, इस पे चढ़े। टैक्सी आपके होटल से तकरीबन 15 या 10 रियाल लेगी, आपको नीचे छोड़ देगी। आप लोग ऊपर जाएंगे, फिर दूसरी टैक्सी पकड़ेंगे, अपने होटल की तरफ जाएंगे। इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए हमारे पास 4 घंटे होने चाहिए। ठंडा पानी साथ हो, जोगर भी पहने हो, और इस पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं। ये है जबले सोर गारे सोर। ये तकरीबन हरम से 5 किलोमीटर दूर है। हरम से 5 किलोमीटर दूर है ये जबले सोर है। आज जब हम दुआ करते हैं उसके बाद इंशाल्लाह गाड़ी में चलेंगे, आके वाक़िया बताएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैदान अरफात की तरफ चलेंगे। खाना डाल दिया और बस वाले सब में बैठ गए। चले जल्दी आए, चले। पहाड़ पे चढ़ना है? आप कह रही थी ना पहाड़ पे चढ़ते हैं। मेरी सुबह आ रही हूँ, मैं जॉगर पहनी हूँ, मैं बस पानी का अरेंजमेंट कर दे और पहाड़ चढ़ा दे मुझे। रात को पहाड़ पे चढ़ना है। चलेगा, ये सब अपने इसमें जाएंगे, फिर बैठ के फिर हम अपनी सीट पे बैठ के चले जल्दी से राइस खा के। मैं तो बैठ गया सबसे पहले। अभी मैदान अरफात के अंदर पहुंचेंगे। उस मस्जिद के 6 मीनार, 3 गुंबद, 64 दरवाजे, 28 दरवाजे आज के दौरान खोले जाते हैं। और इस मस्जिद के जो 2 मीनार, 3 गुंबद है वो मैदान अरफात से बाहर है, वो वादी अरना के अंदर है, जिसे वादी अरना का पेट कहा जाता है। उस साइड पे हुजाज कराम को नहीं जाने दिया जाता। अगर हुजाज कराम उस साइड पे चले गए, 12 से 15 लाख लगा के आए, उनके पैसे सारा। इसकी बनावट इस तरह की है, इसके 2 मीनार, 3 गुंबद जो है जो मैदान अरफात से बाहर है। इंशाल्लाह भी वहाँ पे पहुंचेंगे तो सबको दिखाएंगे, सबको क्लियर नजर आएगा। जामिया उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी ऐसे समझे कि ये उलमा कराम पैदा करती है, ये दीनी तालीम देती है। ये सऊदीया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी इस्लामी यूनिवर्सिटी है। जामिया उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी के सामने लिखा हुआ है। जामिया उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी जो इमाम काबा है कारी अब्दुल रहमान सुदेस, वो यहाँ पे भी लेक्चर देते हैं। और ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे उलमा कराम पैदा करती है। ये मैदान अरफात की मजबूत बंदी को शो कर रहे हैं। लोहे वाली शाली नजर आएगी आप लोगों को, शाली नजर आई। अंदर नीम के दरख्त लगे हुए हैं, ये भी पाकिस्तान से मंगवाए गए थे। जनरल जिया के दौर में 80 में तो यहाँ पे लगाए गए थे, ये पाकिस्तान से मंगवाए गए थे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो हमारे मुल्क को लूट रहे हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, और जो हमारे मुल्क के दिफा के लिए अल्लाह पाक उनको लंबी और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। अभी मैदान अरफात से बाहर है। जब मैदान अरफात के अंदर जाएंगे सबने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक के बाद आयशाबान दिल में यही तमन्ना लेनी है कि अल्लाह पाक हम सबको इसी साल हज की सआदत नसीब करे। आयशाबान मैदान अरफात के अंदर खलूस नियत से जो दुआ मांगोगे अल्लाह पाक कबूल करेगा। ये मेट्रो ट्रेन वाला स्टेशन है। यहाँ पे हुजाज कराम मीना से आते हैं, मैदान अरफात से यूनुस जल्फा की तरफ जाते हैं। ये वो स्टेशन है और ये मेट्रो ट्रेन वाला पुल है जो पैकेज वाले हुजाज कराम है तो इसके जरिए सफर करते हैं। पहली ज़ियारत मैदान अरफात, अरफात के मैदान। दूसरी ज़ियारत मस्जिद नमरा। मस्जिद नमरा ये सारा साल बंद रहती है। इसके अंदर आज का खुतबा होता है, इसके अंदर 2 नमाजें अदा की जाती है। इस मस्जिद के 6 मीनार, 3 गुंबद और 64 दरवाजे हैं। आयशाबान इसके अंदर ना कोई जुम्मा होता है ना कोई और नमाज होती है, सिर्फ एक दिन खोली जाती है, सारा साल बंद रहती है, वीराने की शक्ल अख्तियार करती है। सिर्फ एक दिन खोली जाती है, हज का खुतबा होता है, 2 नमाजें अदा की जाती है। अभी इंशाल्लाह आपको वहाँ पे लेकर जा रहे हैं। वहाँ पे देखना गाड़ियाँ बहुत कम होगी। वहाँ पे 2 रकात तहियतुल मस्जिद या शुक्राना या हाजत के नाम की अदा करेंगे। वहाँ पे वॉशरूम वगैरह बंद है। अगर कोई पानी लेके करना चाहेगा पानी वहाँ से मिलता है। वहाँ पे पानी से लेकर जिसका वजू होगा वो नवाफिल अदा करेगा, जिसका नहीं होगा किबला करे फेस करके दुआ करेगा। उसके बाद वहाँ पे 8 से 10 मिनट का स्टे होगा। उसके बाद चलेंगे चपले रहमत।
अरफात एंड से यहाँ से मैदान अरफात का बोर्ड यहाँ पे लगाओ। अगर उधर जाएंगे तो बाहर चले जाएंगे, वहां से इंटर होंगे तो लिखा होगा अरफात स्टार्ट हुआ। अभी गिरता भी नहीं। मैदान अरफात में पहुंच चुके हैं, अब यहाँ नमाज अदा करेंगे। खैर मेरा वजू तो नहीं है तो इसलिए मैं दुआ ही कर रही हूँ उस तरफ रहने के। मेरा पप्पा का तो वजू, पप्पा नमाज पढ़ रहे, मैं बैठ के दुआ ही मांगी। यार मैंने तो दुआ वगैरह मांग ली, पप्पा ने नमाज और दुआ मांग ली। अब चले, अब पता नहीं क्या करना है, अब मैं बताता हूँ। चले गाइस, अब हम लोग बस की तरफ जा रहे हैं। चले गाइस, अब हम लोग अपनी तैरने हों। चले भाई, चले जल्दी। गाइस अभी हम लोग जबल रहमत पहुंच रहे हैं, अभी उतरेंगे, आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे बाद फिर बस में बैठना होगा वरना बस निकल जाएगी। क्या करेंगे बताइए। वो जाएंगे सीधा, दुआ मांगी। हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, हमें आधे घंटे वहाँ धुआं मांगने, और फिर 10:30 बजे हमें गाड़ी में चले आने वापस। ऐसे देखे पूरी जगह रहमत, वहाँ दुआएं कबूल भी होती हैं। देखो रश देखे कितना ज़्यादा, पिछली दफ़ा जब हम लोग आ जाए इतना रश थोड़ी था, इतना अब रश हो गया। अभी यहाँ से हमें सीढ़ियों का रास्ता मिल गया, और यहाँ पे दादी और रेहाना घुमाने नहीं आ रही क्योंकि भाई यहाँ पे आने में टाइम लग जाएगा, और चढ़ने का भी बहुत ऊपर है तो बहुत टाइम लगेगा, और पैर में भी दर्द हो जाएगा। हम लोग सीढ़ी से जा रहे हैं और बाकी गार्डन जो वहाँ पहाड़ों से जा रहे हैं। ये शॉर्ट रास्ता ले रहे हैं। अभी सीढ़ी से चढ़ कर आ रहे तो मैंने थोड़ा सा पहाड़ों का रास्ता ले लिया। भाई अभी पता नहीं कहाँ है, वो पहले से ही आ गए होंगे। और ये देखें, सब हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, यहाँ से उतरते हैं। आए बस दुआ मांगे, अब नीचे दुआ मांग लिया आपने अच्छे तरीके से ऊपर, तो डायरेक्ट पहाड़ से चढ़ते हैं। अरे जाए, मैं भी पूरा यहाँ से पहाड़ यहाँ से उतरेंगे, यहाँ से सीधा बाहर रोड पे। हाँ पर पूरा घूम कर आए जंगलियों की तरफ। अच्छा यहाँ से उतर गए ना, यहाँ से उतरते चलेगा। ब्लॉग कंटिन्यू जब तक लेगा। बाय गाइस, देखिए भाइयों मैंने ऐसा पार्किंग करके इतनी जल्दी ले आए वहाँ। अरे रुके भाई, हो भाई अम्मा। चलेगा, ब्लॉग करने कब तक लेगा। बाय चलेगा। बहुत थक गया, अभी पानी वाने के लिए फुल पसीना आए भाई। गाइस जिनको भी लगता है ना हज करना, उम्रा करना, ये ज़ियारतें करना बहुत आसान है भाई। पिछली बार तो मैंने कर भी दिया था, मगर पिछली बार इतना आसान जगह पर रश देखे, इस पर डबल ट्रिपल की मुश्किल आती है। पिछली बार तो बहुत आसान है। अभी दादी और ममानी को हम लोगों ने ढूंढ लिया, मगर अभी एक मसला है क्योंकि 10:30 हो गए, और हमारी जो बस है वो 10:30 थोड़ा मुश्किल है। जल्दी से चलते हैं। हाँ 10:30 हो, जल्दी जल्दी निकलेंगे। यार अभी तो बहुत खाई है, मुझे लगा भरा ही हुई कि ये आ गए भाई पप्पा के टोके, पप्पा को वापस। अभी गर्मी लग रही है यार ऊपर, चले अब यही। आप लोग अपने उल्टे हाथ की तरह देखेंगे, आपको हेलीकॉप्टर नजर आएगा। एक खड़ा है, हाँ एक खड़ा। यहाँ पे 3 4 5 रुपये होते हैं तकरीबन, अभी एक खड़ा है। ये इसलिए यहाँ पे खड़ा किया गया है, अगर मैदान अरफात के अंदर कोई हादसा पेश आ जाए उसके लिए यहाँ पे इसको खड़ा किया गया है, ताकि किसी को मुश्किलात दरपेश ना आए और वो मैदान अरफात के अंदर उनको फिर रेस्क्यू किया जाता है। उधर से एम्बुलेंस के अंदर लाया जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ से फिर उनको हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया जाता है, क्योंकि इशारा भी बंद होता है, रास्ते में ट्रैफिक होती है, तो उसको सफर को कम करने के लिए इसके जरिए उनको हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिल किया जाता है। इंशाल्लाह आपको वो रास्ते दिखाएंगे जो पैदल जो आजकल हम चल के आते हैं। 8 रास्ते बसों वाले, 4 पैदल वाले और 1 मेट्रो ट्रेन वाले। 8 जिलहज को आते हैं मीना के अंदर। कहाँ पे आते हैं? मीना के अंदर। वहाँ से फिर चलते हैं। कुछ लोग रात के टाइम भी निकल आते हैं अरफात के लिए, कुछ 9 जिलहज के दिन भी आते हैं अरफात के अंदर। पहला 8 वाला, फिर 9 मैदान अरफात के अंदर, 10 फिर मुज़दलिफा के अंदर। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। फिर 11 जिलहज को मीना के अंदर और 12 जिलहज को भी मीना के अंदर। ये कंकर मारते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं, वो भी इंशाल्लाह भी आपको बताएंगे, और जमरात भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, सारी ज़ियारत कराएंगे। और ये 2 रास्ते इकट्ठे हैं। मस्जिद नंबरा क्लियर नजर आ रही है सबको? देखिए मीनार और गुंबद तो रोड सामने येलो कलर का 2 चौथे रास्ते पे। अब ये देखिए ये रास्ता नजर आया, ये वो रास्ते और इस रास्ते पे बोर्ड है, और यहाँ पे जाके वहाँ पे जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे साथ मिल जाते हैं, और मैदान अरफात के अंदर वकूफ बात करते हैं। नहर ज़ुबैदा। अब देखिए हाथों से तराश के नहर बनाई गई। जब ये नहर तैयार होगी, गुलाम बिल्ले के मलका ज़ुबैदा से फरमाते हैं, हमारी मंजूरी उन्हें दे दीजिए। मलका ज़ुबैदा बिल लेती है, देखे बगैर फाड़ के इस नहर के अंदर बहा देती है, और फरमाती है जाओ खजाने के दरवाजे खुले हैं,
जो चाहे जितना चाहे मैं सकता है ये 10 जिलहज को तवज्जो देनी है 10 जिलहज को बड़े शैतान को 7 पत्थर मारे कितने 7 पत्थर मारे चले गए तवाफे ज़ियारा किया कुर्बानी की सर मुड़ाया एहराम खोला उसके बाद फिर वापस आ गए मीना के अंदर फिर 11 जिलहज को तीनों शैतानों को 7 पत्थर मारे फिर वही प्रोसेस फिर वापस आ गए फिर 12 जिलहज को तीनों शैतानों को 7 पत्थर मारे टोटल पत्थर कितने हुए जी बताएं जी पीछे वाले सबको बताया किसी एक को तो नहीं बताया था सबको बताया मैं अपने लाउड में बताया सब 48 वाला भाई आज खड़ा करे थोड़ा सा पता तो चले 48 कैसे हुए 49 कम करो तो अल्लाह वाले तवज्जो दिया करें सुबह से मैं यही बातें उधर से चल रहा हूँ तो यही बातें करता रहा हूँ तवज्जो दिया करें ये बात ये नेचर अल्लाह पाक का अज़ाब नाज़िल हुआ अबरस में बादशाह पर जो शमन जो रहने वाला था हाथी का लश्कर लेकर आया उस बिल्ला कांटे को गिराने के चक्कर में सबको नजर आ गया आज इधर देखें ये वाली बाजी 6 बरस की उम्र में अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर आए अल्लाह पाक इब्राहिम अलैहिस्सलाम कीमती चीज दो जिससे मैं राजी हूँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह पाक मेरा तो ऐसा कोई कीमती असासा नहीं है नहीं आपने बेटा अता किया यही आपकी हमें कुर्बान करने के लिए लेकर आते उस पहाड़ के ऊपर लेकर जाते आपको पत्ते बांध के छुरी चलाते हैं छुरी नहीं चलती दोबारा छुरी लेते हैं छुरी चलाते नहीं चलती वही छुरी पत्थर पे मारते हैं पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं छुरी से फरमाते क्या मेरे इस्माइल की गर्दन इससे भी ज्यादा सख्त है हजरत इब्राहिम को हुक्म होता है जाओ जन्नत से डुम्बा लेकर आओ हजरत इस्माइल की जगह सुनाओ और हजरत इस्माइल को वहां से उठाओ हजरत जिब्रील जाता है जन्नत से डुम्बा लेकर आता है हजरत इस्माइल की जगह सुलाते हैं और हजरत इस्माइल को वहां से उठा लेते हैं जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम डुब्बे की गर्दन पे छुरी चलाते हैं वो साथ में खड़े हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे फिर तो देखें जब मैं जमरात की तरफ इस तरह इशारा करूं कहूंगा अल्लाहु अकबर सब ने जमरात की तरफ करना है वो सामने देखे पहले देख लें ये सामने देखे नजर आ रहा है सफेद कलर की छपरी नजर आ रही है जहाँ पे अंधेरा है और व्हाइट कलर के पिलर बने हुए हैं रस्सों से बंधे हुए हैं सबको नजर आए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ये तशबीह के तौर पे हमने इसको मारा अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों को लेकर आए और हज पे आए इसकी खिदमत करें सीधे हाथ की तरफ ये है मीना की बस्ती क्या है मीना की बस्ती वादी मीना की बस्ती ये वादी मीना है देखिए कहीं पे ब्लैक है मैं नजर आया कोई रेड नजर आया हो कोई ब्लू नजर आया हो कौन से खेमे हैं व्हाइट ही व्हाइट है सफेद है ये मक्का की नहीं सऊदीया की नहीं पाकिस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती है किसकी दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती है यहाँ पे लाखों की तादाद में खेमे हैं किसकी तादाद में लाखों की तादाद में नीचे वाला मंजर देखें जहाँ तक नजर जाएगी व्हाइट व्हाइट नजर आ रहे हैं अरे हीरा का पहाड़ है इस पे चढ़ने के लिए 1 घंटा लगता है और वापस आने में 40 मिनट लगता है और ये रात के टाइम भी खुला होता है दिन के टाइम भी खुला होता है और सुबह के टाइम भी ये 24 घंटे खुला होता है इसे नूर का पहाड़ कहते हैं और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे इबादत की करते अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक मेरी उम्मत को माफ फरमा रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती अल्लाह पाक मेरी उम्मत को माफ फरमाए अल्लाह पाक मेरी उम्मत को माफ फरमाए अल्लाह पाक मेरी उम्मत को माफ फरमाए ये पहाड़ है जबले देर वारे विदा और ये ऊंट की मानद है इंशाल्लाह आगे गुजारा करते हुए कहते हैं जगह जिन है मस्जिद जिन यहाँ पे वो लाइट जल रही है ग्रीन शीशों वाली बिल्डिंग है उसका नाम है मस्जिद शजर अरबी में दरख्त को कहते हैं वहाँ पे एक दरख्त है सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड की तरफ ये ऊपर वाला पहाड़ और ये सारा पहाड़ जबल अबू कुबास का पहाड़ है जबल अबू कुबास का पहाड़ की ज़ियारत अल्लाह पाक की बारगाह में क्लॉक टावर ज़ियारत हो गई हमारी अब हम लोग नीचे जाते हैं हमारा होटल आ गया तरफ हमारे ये होटल में चलते हैं कार मेरे पास ये रहा हमारा इसमें डालता हूँ और ये क्रिएट करता हूँ बंद सबसे पहले मैं ही आया हूँ अभी कोई भी नहीं है वो लोग थोड़ी मार्केट वगैरह देखने लग गए थे मैंने बोला मैं तो जा रहा हूँ भाई ऐसे ही अब एसी वगैरह भी चल जाएगा अभी चले यहाँ पे आराम से मैं बैठता हूँ